Good afternoon, everyone. So we were doing magnetism chapter, and in that we have done magnetic fields due to current carrying wires. Now we see some illustrations. We have done the formulas as well as some numericals on that. Today we'll see some bio that concept. ठीक है, वो concept हम illustrations के through देखेंगे, so that will make more. We have done Biot-Savart law. Biot-Savart law provides me the Biot-Savart law क्या provide करता है? It provides the magnetic field due to a current carrying element. ये क्या है? उसका magnitude है mu naught by 4 pi is a constant depending on the medium. I is the current flowing through that wire. dl is the current carrying element. Sin theta, angle between dl and r is the distance of that point from the current carrying element. Okay, तो ये dB हमने क्या लिखा है? हमने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा mu naught by 4 pi. क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी है. mu naught is my permeability, depends on the medium. I is the current carrying wire and r is the distance. तो ये बायोट-सावर्त लॉ क्या प्रोवाइड करता है? एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से कितनी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. हम उसका इंटीग्रेशन करके क्या करते हैं? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था. तो सीधा इलस्ट्रेशन है यहाँ. Given by D is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r by r cube. D is equal to mu naught by dl r square. Mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. It is magnetic करंट कैरिंग एलिमेंट. इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से क्या थी? हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी. नाउ लेट्स मूव ऑन. ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग. एक अगर हमारे पास रिंग है, वो क्या कर रही है? उसके पास मैग्नेट करंट है, उसकी वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया. ठीक है. Circular ring. While calculating the magnetic field of an axis that is circular current, we find that the perpendicular components of magnetic field due to small elements of circular current loop get cancelled out and the net field remains only along the axis. B net is equal to Bx is equal to mu naught I r square by 2 x square plus r square to the power 3 by 2. The field at the center of the loop is B naught is equal to mu naught I by 2r. यहाँ पे हमने क्या किया है? दिस इज माई लूप, दिस इज माई करंट कैरिंग लूप, द येलो वन. इसमें क्या कर रहे हैं? हमने करंट पास किया. आई करंट इज फ्लोइंग, डीएल इज द करंट एलिमेंट. इसकी वजह से इसकी एक्सियल पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? is equals to mu naught I r square x square plus r square 3 by 2. We have noted down this formula in the last class. And the field at the center when x is equals to 0, जब सेंटर पे आ जाएगा तो मेरा कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? यहाँ इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, म्यू नॉट आई ओवर 2r. ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट द सेंटर पॉइंट. ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. हर पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज गिवन लाइक दिस. Concept of infinity. In physics, infinite is a relative term. In the context of magnetism, infinite or long current carrying conductor means the distance of points from the conductor of where we are calculating magnetic field is significantly smaller than the length of the conductor. हम इनफाइनाइट वायर की वजह से लेते हैं, तो यहाँ पे बस एक कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी एक्सप्लेन किया है. इन्फिनिटी क्या है? ठीक है, हम लोग तो बहुत लार्जर डिस्टेंस. अब लार्जर डिस्टेंस कितना? मैं इसको इन्फिनिटी ले सकती हूँ. यस, आई कैन टेक इट इन्फिनिटी. अगर मैं बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे क्या कर रही हूँ? मेजरमेंट कर रही हूँ. इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर एल, और यहाँ पे क्या है? जो हमारा जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, द आर पॉइंट पी, वेयर आर इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट. तो ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी वेरी लेस. ये क्या होना चाहिए? बहुत स्मॉल होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा? वी कैन कंसीडर दिस एज एन इनफाइनाइट वायर.
You can give the answers in the chat box, true or false answer type questions है ये. In the definition of Biot-Savart law, dB is equals to mu naught by 4 pi I dl cross r over r cube. dl represents the length whose direction is along the current flow. Is it correct statement or a false statement? You can write your answers in the chat box. Is it true or is it false? Is it a true statement or a false statement? Is it the Biot-Savart law or not? ये क्या था? ये सॉल्यूशन हमारा सही था. ठीक है. We have done Ampere circular law also, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड हमने नॉर्मल ट्रू करेक्ट. ठीक है. जिसकी वजह से हम करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे. ये हम क्या कर रहे हैं, हमने उसका एक लॉ दिया जस्ट लाइक गॉस लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. अराउंड एनी कंडक्टर कैरिंग स्टेडी करंट, कोई भी कंडक्टर हो किसी भी शेप का, अगर वो करंट लेके चलता है, इफ वी अज्यूम अ क्लोज बाउंड्री, तो उस बाउंड्री के अराउंड हम एम्पियरियन लूप बनाएंगे. B dot dl is equals to mu naught I, where I is the current enclosed by the boundary. Like Gauss law, this can be used to calculate B around the symmetric flow. ठीक है. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन किया था ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. पहले पॉइंट चार्ज, फिर 2 चार्जेस, फिर 3, फिर मल्टीपल चार्ज एंड फिर कॉन्टिन्यूस बॉडीज. तो कॉन्टिन्यूस बॉडीज की निकालने के लिए वी हैव डन द लॉन्ग मेथड आल्सो. एंड हम लोगों ने क्या किया था, गॉस लॉ अप्लाई किया था. तो द सेम वे वी कैन अप्लाई बायोट-सावर्त लॉ. बायोट-सावर्त लॉ क्या कहता है कि B dot dl, magnetic field around the closed loop, is equals to mu naught I, where I is the current enclosed by the boundary. वो कितना करंट लेके चल रही है. एंड हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे देखो हमें पता चल जाएगा B dot dl हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर द सिमेट्रिक कंडीशंस, सिमेट्रिक बॉडी लाइक स्फीयर, रिंग, हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. It can be, it is the ampere loop is valid in every loop, but it is useful only when it's symmetric. सिमेट्रिक के केसेस में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. और अगर नॉर्मली कैलकुलेट करना है तो वी हैव अवर बायोट-सावर्त लॉ. सो यू कैन गो विद द लॉ नाउ. If we assume a closed boundary, then the line integral B dot dl along the loop is equal to mu naught I, where I is current enclosed by the loop. Like Gauss' law, this law can be used to calculate the magnetic field if B is symmetric along the loop. Applications. Ampere's law. The closed boundary called Amperian loop is chosen such that either 1. B is tangential to the loop and is a non-zero constant. 2. B is on the loop, so B dot dl becomes 0. In such cases, law can be simplified as shown in the animation. क्या जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म ली है, ये देखो बी, हमने ये यूनिफॉर्म फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विद स्ट्रेट पैरेलल लाइंस. ठीक है. इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मींस हर पॉइंट पे क्या है, हमारा स्ट्रेंथ सेम है. अब देखो स्ट्रेंथ सेम है मींस बी सेम है, तो एट एवरी पॉइंट आई कैन टेक द बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. ठीक है. बी डॉट डीएल ओवर द होल लूप क्या होगा, पी से क्यू अगर ये जा रहा है तो बी डॉट डीएल है. B can be taken outside because it is constant at every point. तो constant चीज इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, dl बचा. अब छोटे छोटे dls को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, लेंथ l मिल जाएगी. एंड विद द सेम SR, हम SR में ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, B डॉट dl. अब माइनस क्यों आया, बिकॉज वी नो द साइंस. हम अगर इसमें ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, अपोजिट मूव कर रहे हैं. तो B डॉट dl क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक यूनिफॉर्म केसेस में वी कैन टेक लाइक दिस.
एंड जो टेंजेंशियल था, देखो टेंजेंशियल क्या था हमारा यहाँ पे कि हम लोग इस पॉइंट पे बी कैसे जा रही है, ऐसी जा रही है, इट इज टेंजेंट टू दिस, तो ये क्या हो जाती है, साइन थीटा हमने पढ़ा था, साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स पे हमारी क्या लगती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, जहां पे ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो वी कैन अप्लाई दिस लॉ एज दिस, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने पूरा फॉर्मूला दे रखा है, जर्नल फॉर्मूला, पर इन्होंने इनफाइनाइट के केस में कैसे किया, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, देखो एट एवरी पॉइंट बी इज सेम, यूनिफॉर्म ले लिया, बी कम्स आउट, पूरे इस सर्कल में क्या किया हम लोगों ने, इसका सब किसमें, डॉट डीएल मींस पूरी लेंथ का इंटीग्रेशन, पूरी लेंथ का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनती है, हमें पता है स्ट्रेट लाइन की वजह, स्ट्रेट करंट कैरिंग वजह से हमारी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब इन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं सिर्फ डॉट डीएल छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके क्या कर रही हूँ, उन्हें एड अप कर रही हूँ, तो देंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 pi r is the circumference is equals to mu naught I, तो b किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2 pi r, b किसके इक्वल हो गया है मेरा, म्यू नॉट I over 2 pi r, this is the current magnetic field due to this current carrying wire, और उसकी शेप क्या होती है, हमारी शेप होती है सर्कुलर की, एंड डायरेक्शन मत भूलना, डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। Current carrying long straight conductor. Ampere's law equation to find B and the distance R due to an infinite current carrying conductor can be given as B into is equal to mu naught I. B is equal to mu naught I by 2 pi R. This is the current magnetic field due to straight current carrying wire. Magnetic field due to current carrying long straight conductor. ये हम कर चुके थे, दिस इज जस्ट इलस्ट्रेशन सो दैट यू कैन गेट द लुक कि कैसे करंट फ्लो कर रहा है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में बन रही है, ठीक है। टुडे विल स्टार्ट विद एंड देन विल इलस्ट्रेशन ऑफ दैट, हम उसके बाद उसकी इलस्ट्रेशंस देखेंगे। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देख चुके हैं ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं, वी हैव गिवन द फॉर्मूलाज एज वेल एज द बायो Ampere circular law to find for the various L configurations. Now we'll see कि ये क्या फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और कौन से चार्ज पार्टिकल फोर्स, ठीक है। आप पहले क्या करते हैं, फोर्स से पहले सम फैक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर एक फैक्ट करते हैं, हमारा चार्ज पार्टिकल है Q, तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर, ये क्या करता है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, charge at rest creates electric field around its own, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, और यहाँ पे अगर मैं क्या करती हूँ, एक रेस्ट पे चार्ज को, a charge at rest experiences force when it is kept in electric field, अगर इस चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये क्या करता है, it experiences force, we know ये क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फर्स्ट फैक्ट क्या है, तो charge at rest produce electric field, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड को, produces electric field and experiences electrostatic force, experiences electrostatic force when kept in external field, दोनों चीज यहाँ लिख दी, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स करते हैं। इन एक्सटर्नल फील्ड जो चार्ज है, चार्ज सबसे पहले फर्स्ट क्लास में डिफाइन किया था चार्ज को, चार्ज की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, चार्ज हमने डिफाइन किया था, तो उसकी वजह से अब हम चार्ज को लेके चलते हैं। हमने जब चार्ज रेस्ट पे देखा, चार्ज एज रेस्ट मींस अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, यहाँ पे ये रेस्ट पे रखा है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव लिया है तो इसने क्या किया, रेडियली आउटवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या किया, क्रिएट किया। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज माय एक्सटर्नल फील्ड, अगर इस चार्ज को मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखती हूँ
तो ये क्या करता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और अगर नेगेटिव है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मैग्नीट्यूड मेरा क्या रहता है, यही रहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा रेस्ट वाले में जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, ये फिनोमेना दिखाते हैं, ठीक है। एंड चार्जेस एंड मोशन, अगर चार्ज क्या रहते हैं, चार्जेस इन मोशन, अगर वो मोशन में है, चार्ज इन मोशन produces both electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, ठीक है। ये हमारे अगर चार्जेस क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, ठीक है। तो हमारा अगर ये चार्ज है, ठीक है, एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, ये क्या करता है, वेलोसिटी v के साथ क्या करता है, आगे मूव करता है। तो ये अपने अराउंड क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है, और एक क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। बिकॉज चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट करंट, एंड करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस माय मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे भी हमने बायो सावर्त लॉ इसके फॉर्म में भी किया था कि हमने क्यू कैसे, ये मूविंग चार्जेस हाउ कंस्टिट्यूट्स माय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस भी करता है, और व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड्स, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं इसे, आइदर मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड्स experiences इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी कर रहा होगा। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इफ आई राइटिंग ई, तो कितना करता है, क्यू ई चार्ज करता है। एंड अगर उसे मैं मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रख देती हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रख देती हूँ, तो वो कितना चार्ज एक्सपीरियंस करता है, क्यू वी क्रॉस बी। कितना, क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस। अभी इस पे नेक्स्ट पूरा क्लास हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शंस, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, force experienced by q, the charge particle in magnetic field। पर मैग्नेटिक फील्ड में ये कब फील कर पाएगा, एक्सपीरियंस कर पाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जब ये सिर्फ क्या है, हमारा मोशन में है। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो मेरा एफ भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट मीन्स अगर मेरा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर वेलोसिटी जीरो है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्सपीरियंस करता है। जैसे ही मोशन में आता है, देन इट कैन एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, हम इस पर भी पूरी थ्योरी करने वाले हैं। तो अब एक जस्ट फैक्ट्स लिख लो कि फर्स्ट फैक्ट क्या था, रेस्ट पे है चार्ज। सेकंड क्या है, चार्जेस इन मोशन, ये क्या करते हैं, यू कैन नोट दिस डाउन। Just writing charge particle
in magnetic field B, magnetic field V with a velocity V, it experiences magnetic force given as F is equals to Q V क्रॉस B। ठीक है, कैसे दिया हमने, Q V क्रॉस B। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर सिर्फ हमारे उस रीजन में क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें कितना फोर्स एक्सपीरियंस मिलेगा, Q द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में वो एंटर किया है। ठीक है, जैसे अगर ये ने क्या ले लिया, रीजन ले लिया, और इसमें चार्ज पार्टिकल ने क्या किया, ऐसे मोशंस करना स्टार्ट किया, तो ये क्या करेगा, इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हम देखेंगे अभी कैसे क्या इफेक्ट आता है फोर्स लगने से। हमने देखा है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है, अगर वो मोशन की डायरेक्शन में है, अगर मोशन की डायरेक्शन में है, तो ये क्या करता है, ये वेलोसिटी चेंज करता है। उसको क्या करता है, ये करता है वेलोसिटी चेंज। इट प्रोवाइड्स द एक्सेलरेशन एंड चेंजेस द वेलोसिटी। और अगर क्या लगता है, इसके नॉर्मल लगता है, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है और हमारा क्या लगा, पार्ट फोर्स ऐसे लगा, तो ये क्या करता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन, इट चेंजेस द डायरेक्शन। और कोई रैंडम फोर्स है, हमारा कोई रैंडम फोर्स है F, तो आई कैन रिजॉल्व दिस फोर्स। मैं F cos थीटा एंड F sin थीटा में से क्या कर सकती हूँ, रिजॉल्व करती हूँ। ये क्या करेगा, कुछ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और कुछ डायरेक्शन, तो ये क्या कर देगा, ये ऐसे कहीं पे क्या कर देगा, ये मूव कर जाएगा। तो किसी भी बॉडी ऑफ मास m पे हमारा क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो ये क्या करते हैं, वेलोसिटी चेंज कर सकती है। फोर्स के इफेक्ट्स हैं ये तो। अब चेंज इन मोशन क्या है, चेंज इन डायरेक्शन, फोर्स लगाया तो इफेक्ट ही यही रहते हैं हमारे, तो वेलोसिटी चेंज ले आएगा, डायरेक्शन चेंज ले आएगा। इट्स नॉर्म पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, वेलोसिटी चेंज, परपेंडिकुलर टू द मोशन, डायरेक्शन चेंज, एंड रैंडम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे हम, F cos थीटा, वो क्या करेगा, वो वेलोसिटी चेंज लाएगा। F sin थीटा ये क्या लेके आएगा, ये लेके आएगा हमारा डायरेक्शन चेंज। तो ये हमें कंसेप्ट पता है, वी हैव डन न्यूटन्स लॉ 7। तो हम देखेंगे अभी इस फोर्स का, जो मैग्नेटिक फोर्स है, उसका क्या हमें एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, एफ बी इज द वेक्टर प्रोडक्ट, ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस बी है। तो यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड, यहां से अगर मैं क्या करती थी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी, आई एम टेकिंग टू वेक्टर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज गिविंग मी अ थर्ड वेक्टर। हमने ए और बी का क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, और मुझे क्या मिला, एक सी वेक्टर मिला। तो इसकी डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड हो जाता था ए बी साइन थीटा। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है मुझे, तो क्या हो जाएगा, क्यू तो मेरा कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी में कितना एंगल है, वो हमें क्या कर रहा है, वो थीटा है। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे, डायरेक्शन क्या देते थे, डायरेक्शन हम बोलते थे इट इज परपेंडिकुलर टू ए ऑल्सो। जो मेरा सी वेक्टर है वो क्या होगा, सी वेक्टर जो है मेरा परपेंडिकुलर होगा मेरे ए वेक्टर के भी, और मेरा परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी। हम ऐसे ही बोलते थे, और क्या बोलते थे, C is perpendicular to the plane containing A and B, to the plane containing A and B। यही हमने राइट हैंड रूल में भी किया था। ठीक है, अगर ये x एंड y में है तो ये कहाँ जाएगा, z में जाएगा, y z में है तो ये x में आएगा। हमें ऐसे क्या मिलती है, डायरेक्शन। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है
एफ की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होना चाहिए? वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड मैग्नेटिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी मेरी बॉडी क्या कर पाएगी? फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगी। अगर ये दोनों क्या हो जाए, ये दोनों पैरेलल हो जाए, मींस देयर एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, तो मेरा कोई चार्ज एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, वो अनडेविएटेड क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। बट अगर परपेंडिकुलर हमने प्रोवाइड किया था, वो क्या करेगा? कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यू कैन नोट दिस डाउन एंड देन वील मूव टू द फोर्स ओनली। हम लोग फोर्स पे ही आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। इफ एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। एंड फॉर द हिंदी स्कूल स्टूडेंट्स, मैं एक बार हिंदी में भी सब रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, हमने क्या कर रहे हैं, हम एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें हमने रख दिया है। ठीक है, अब वो चार्ज क्या करेगा? अगर वो चार्ज मोशन में है, वो अगर मूव कर रहा है, तो उस पर क्या होगा? वो एक फोर्स किया हमने, एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, हमने क्या किया है? प्रोवाइड किया है। अब देखो ये वी क्रॉस बी क्या है? हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे देते हैं? हमने दो वेक्टर कंसीडर करे, इसका वेक्टर प्रोडक्ट है सी। तो सी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड द साइन थीटा। तो अब सी और डायरेक्शन की बात करते हैं, तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू बी, और वी कैन से दैट अगर देखो ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये इसकी डायरेक्शन है। अब यहाँ पे ये अप्लाई करें, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? क्यू वी बी साइन थीटा। अगर कोई क्यू चार्ज मेरा बी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया, तो इसको ये क्या करता है? ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बट द फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द एंगल, हमारे एंगल पे भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। और अब कैसा है? फोर्स किसके परपेंडिकुलर होगा? वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज क्या है? हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वी हैव डन दिस। नोट दिस डाउन प्लीज एंड देन वील मूव ऑन। Noted. Fine.
तो ये हो गया, अगर मूविंग चार्ज को मैंने क्या रखा है, एक रीजन में रखा है जहां पे मेरी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। देखो अगर मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख दी, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन, एंड पार्टिकल को वेलोसिटी भी क्या दे दी, पार्टिकल को वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में दे दी, ठीक है, पार्टिकल को वेलोसिटी क्या करा, इसी डायरेक्शन में मैंने क्या कर दी, वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। तो कितना मेरा ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एफ बी, द फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा, ये ऐसे लिख सकते हैं। पहले क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, दोनों क्या है मेरे पैरेलल, तो थीटा 0 डिग्री, साइन 0 0। तो अगर मेरे ऐसे, अगर दोनों क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, बिकॉज मेरा ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू वी, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू बी, दे ऑल शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये चीज यहाँ रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दे विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स, दे विल लाइक मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी डेविएशन। यहाँ क्या आएगा, नो डेविएशन, यहाँ पे फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो ना हमारी क्या हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, एंड ना क्या हमारा कोई डायरेक्शन चेंज हुआ, कोई भी डेविएशन यहाँ पे नहीं है। सेकेंड, अगर हमने कैसा केस ले लिया कि हमने इसको 90 डिग्री, द मिनिमम फोर्स एंड मैक्सिमम फोर्स क्या ले लेंगे, अगर ये कैसी है, क्रॉस, क्या क्रॉस का क्या मतलब होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, कैसी है, टू द प्लेन है, बी इज इनटू द प्लेन, ये प्लेन के ऊपर नहीं है, ये प्लेन के अंदर जा रही है। अगर देखो ये मेरा प्लेन है, तो प्लेन पे नहीं है, प्लेन के क्या जा रही है, अंदर जा रही है, ये इसके 90 डिग्री पे। इस पे क्या किया मैंने, इस पे मैंने q मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी हमने ऐसे प्रोवाइड कर दी। अब दे आर एट द राइट एंगल, बिकॉज वो अंदर जा रही है, देखो वो अंदर जा रही है, एंड मेरा ये क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, दे आर एट 90 डिग्री नाउ। तो कितना एंगल है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, f इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90, दैट इज माई 1। तो ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ये क्या करते हैं, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं अगर 90 डिग्री पे क्या आता है, अगर मेरा नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड कोई चीज आती है, तो दे एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। अब देखो इस फोर्स की वजह से अब क्या होना चाहिए, F शुड बी परपेंडिकुलर टू V एंड परपेंडिकुलर टू B, तो इसकी डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन मेरा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल। और हम करने वाले हैं, इसे आप राइट हैंड रूल से भी कर सकते हो, कि अपना बी पे हाथ रखो, बी की टूवर्ड्स टर्न करो, द थंब विल गिव यू दैट। पर हम किसे करेंगे, हम करेंगे इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड पोर्शन। अभी क्या किया है, दो मैग्नेटिक फील्ड ली थी, अभी तो मैंने आपको एंगल चेंज करके दिखाया है कि एंगल चेंज हो रहा है, तो मेरे फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने क्या ले ली थी, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनसाइड वाली हो जाएगी, और अगर मैंने ऐसे डॉट डॉट बना रखे हो, वो क्या हो जाएगी, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बट कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, ये क्या है, कमिंग आउट ऑफ द पेपर। सो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस। क्या, ये आगे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मेरे एक ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मेरा एक ये रीजन है,
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है और मैग्नेटिक फील्ड बी भी है। तो हमारा अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है ऐसे रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो इट विल एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू बोथ ऑफ दीज फील्ड्स। पहला क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करेगा, दिस इज ड्यू टू माई इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसने क्या किया, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, प्लस क्यू वी क्रॉस प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस टोटल फोर्स, ये पूरे टोटल फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, हम इसे नाम देते हैं लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। लॉरेंस force equation, which tells me the magnitude of the force, which tells me the force experienced by the charged particle when kept in electric and magnetic field. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, it provides total electromagnetic, not electrostatic, not only magnetic, electromagnetic forces. It provides total electromagnetic force on a particle. उस पार्टिकल पे कितना क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है, इट प्रोवाइड्स मी दिस F इज इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस पी। ठीक है, ये तो क्या हो गया, फोर्स की ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन की हम जो बात कर रहे थे, राइट हैंड रूल से भी आप चीज दे सकते हो, बट यू कैन आल्सो प्रोवाइड थ्रू लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आप लोगों को आता है, मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता देती हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। टेक योर लेफ्ट हैंड, आपको अपना क्या लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है। एक्सटेंड द मिडिल फिंगर, द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, देखो यहाँ से इन दोनों में भी 90, इन दोनों में भी 90 और इसमें भी 90। क्या किया हमने, इसे एक्सटेंड किया इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देन इंडेक्स फिंगर क्या करेगा हमारा, इंडेक्स फिंगर give points in the direction of magnetic field। अगर इंडेक्स फिंगर किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर क्या कर रहा है, मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट इज वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये मूव करता है। देन योर थंब, then your thumb will give direction of का ये फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। मैग्नीट्यूड हम कर चुके थे, क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन कौन देगा, लेफ्ट हैंड रूल देगा। अब देखो पहले वाला जो हमने केस किया था पैरेलल, वहां तो फोर्स 0 था, तो वी डू नॉट नीड टू फाइंड द डायरेक्शन। अगर इसमें इनसाइड है, साइड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, इट्स इनटू द प्लेन and a charged particle q is moving with velocity v। ये वेलोसिटी v के साथ क्या करता है, मूव करता है। तो ये किस डायरेक्शन में इसको फोर्स करेगा, तो लेफ्ट हैंड लेना है, राइट नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है। राइट हैंड हम लोग याद रखना, राइट हैंड क्या यूज करते हो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बट इसमें भी कर सकते हो, बट टू अवॉइड द कंफ्यूजन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड लेंगे, तीनों फिंगर्स को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे,
Now, my index finger, that the first finger points in the direction of B, that it's going inside. ये क्या जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है. B क्या होगा, B ये मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. देखो ये वेलोसिटी की टूवर्ड्स मैंने ले ली, तो थंब विल बी गिविंग द डायरेक्शन. अब देखो थंब क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मींस ये एंटर तो करी थी इस डायरेक्शन में जाने के लिए, बट ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, इस पे इस साइड एक फोर्स लगेगा. क्या लगेगा, ऊपर की टूवर्ड्स एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा. द चार्ज पार्टिकल विल बी डेविएटेड. चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल विल बी डेविएटेड. ये क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा अपनी पोजीशन, अपने पाथ से, ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से. ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पे क्या बना रही हूँ, फिगर बना रही हूँ. दिस इज माय आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the plane, but it's coming out of the plane. ये क्या आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, out of the plane. And a charged particle, a positive charged particle moves with velocity v. तो fm की क्या डायरेक्शन होगी, just apply the Fleming's left hand rule and give me the direction in and put your answers in the chat box, please. You have to give me the direction of magnetic field using Fleming's left hand rule that is written right in your boards. ठीक है, पहले आप ये लिख लो, अपना लेफ्ट हैंड द डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, एंड थंब क्या करेगा, थंब विल बी मूविंग, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉइंट. तो अब देखो ये बाहर ले लो, वेलोसिटी ऐसे ले लो, तो थंब आपका किस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो बताओ. अब डाउनवर्ड, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, कम इनटू द प्लेन, नीचे. ठीक है, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यू नोट दिस. इफ यू वांट me to repeat this, you can write in the chat box as well. I'll repeat this part, but you have to give me the answer. मैग्नेटिक फील्ड है, अभी मैंने ऊपर क्या बोला था, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आल्सो, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड ही बाहर है, तो मेरा फोर्स बाहर की तरफ कैसे लग सकता है. ठीक है, दिस योर आंसर इज रॉन्ग, ट्राई इट अगेन, गिव इट वन मोर ट्राई. लेफ्ट हैंड एंड फर्स्ट फिंगर को क्या करोगे, बी की डायरेक्शन में, आउट ऊपर जिसको पॉइंट कराओ, एंड वेलोसिटी को डायरेक्शन में पॉइंट कराओ, एंड कहाँ पॉइंट कराओ, डायरेक्शन में कराओ. आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरी एनालिस्ट, प्लीज बी गाइडेड. मैं
Am I not audible? I'm audible, I guess. The mic is catching the frequency. I'll take this question now. Okay, I'll give you one more question. It's after this. Just understand this. देखो, index finger, FBI याद कर सकते हो, ठीक है? To remember कहाँ क्या जाएगा? Force, magnetic field B and velocity means velocity को क्या बोल दिया? I. जिस डायरेक्शन में मेरा चार्ज करंट है, ठीक है, उसको क्या बोल दिया? FBI की तरह लेके चलो. अब कहाँ जा रहा है? देखो, ये है मेरा coming out of the plane means ये बाहर की तरफ पॉइंट करेगा. एंड ये क्या करना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो देखो, इसको मुझे घुमाना पड़ेगा, ठीक है? मैंने इसे घुमाया तो थंब विल इज कमिंग डाउनवर्ड्स. ये क्या जा रहा है? थंब नीचे जा रहा है. तो मेरा ये क्या करेगा? ये नीचे की टूवर्ड्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ये क्या करेगा? नीचे की टूवर्ड्स क्या करेगा? ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. गॉट इट? ठीक है. एक और चीज, यहाँ पे Q अभी मैंने पॉजिटिव लेके चला है. जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन विल कम. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो डायरेक्शन फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड से आ रही है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन वुड बी माय आंसर. जस्ट लाइक वहां कंफ्यूज होना है. अगर आपको क्या दे रखी हो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड, फील्ड प्रोवाइड है इस रीजन में, तो हम यहाँ पे क्या दे दे? अब दिस इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन, ठीक है? और वेलोसिटी ऐसे है, बट द चार्ज पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन. अभी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस क्यू वी क्रॉस बी. तो जो भी डायरेक्शन v क्रॉस b से आ रही होगी, उसका नेगेटिव विल बी द आंसर फॉर एफ एम. v क्रॉस b तो आप किससे दे दोगे? फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दे दोगे. किससे दे दोगे? फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दे दोगे और उसका फिर नेगेटिव कर देना. अब यहाँ पे देखो, ये चीज अप्लाई करते हैं हम, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट इज फर्स्ट माय बी अंदर जा रहा है. वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. तो फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड से तो क्या आ रहा है कि मेरा अपवर्ड जाएगा. कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा. बट देयर इज अ नेगेटिव साइन आल्सो. दैट मींस ये कहाँ जाएगा? अपवर्ड का अपोजिट डाउनवर्ड, ये नीचे की क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. हमने अभी फर्स्ट केस में देखा था, अगर ऐसे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज आता है, वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और एक नेगेटिव चार्ज आता है, एक नेगेटिव आता है, वो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है? यू हैव टू अप्लाई माय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. थंब पे क्या आएगा? आपका फोर्स आएगा. इंडेक्स फिंगर विल प्रोवाइड मी द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर विल बी प्रोवाइडिंग द वेलोसिटी. ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है एंड यू हैव टू यूज द लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है? आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड यहाँ से रूल फाइंड. अभी जैसे हमने डिस्कस किया था इससे पहले, किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगता है, अगर वो उसी की डायरेक्शन में लगता है, तो क्या करेगा? वेलोसिटी चेंज लाता है. क्या लाता है? वेलोसिटी चेंज लाता है. वेलोसिटी चेंज ला रहा है मींस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसको, तो यहाँ पे एनर्जी भी कुछ मिलती है. अगर मैंने क्या किया? फोर्स ऐसे लगाया और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, ये क्या करता है? डायरेक्शन चेंज लेके आता है. अगर ये जो मेरा फोर्स हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, वो तो क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. कौन सा केस है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी चेंज तो नहीं करेगा. दैट मींस मेरा कोई भी काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज नहीं आएगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज. अब इसे मैथमेटिकली हम कैसे प्रूफ करेंगे, वो हमें देखना है. एनालिसिस हमने देख लिया कि कोई वेलोसिटी चेंज ही नहीं ले रहा है, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन मिलेगा नहीं. एक्सेलरेशन ये होता है. एक्सेलरेशन मिला नहीं तो वेलोसिटी क्या रहती है? मेरी कांस्टेंट रहती है. तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कोई बॉडी में चेंज हुआ ही नहीं. अगर मुझे इसे वर्क डन वाले कंसेप्ट से क्या करना है? प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ से वर्क डन वाले कंसेप्ट से क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं. वर्क डन by magnetic force, work done by magnetic force on a moving charge.
वर्क डन होता है, ठीक है। और वो कैसा, कितना वर्क डन हुआ, वी नो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 11th में किया होगा, इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉस थीटा। ये कैसा था, ये डॉट प्रोडक्ट था। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या मिलता है, मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, दैट इज माय वर्क डन। तो ये चीज आ रही है। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। T is in the direction of displacement, displacement by time लिखती हूं मैं, तो ये किसकी डायरेक्शन में है, velocity and displacement, velocity and displacement are in same direction। ये क्या रहते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं, दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो आई कैन राइट कि जो एंगल मेरा फोर्स वेलोसिटी के साथ बना रहा होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट के साथ बना रहा होगा। वी नो इन मैग्नेटिक फील्ड, वी नो इन मैग्नेटिक फील्ड theta is equals to 90 degree as force is always perpendicular to v। तो हमारा क्या हो जाएगा, force is perpendicular to displacement also because इनकी क्या रहती है, डायरेक्शन तो सेम रहती है। हमने काइनेमैटिक्स अप्लाई किया, थीटा अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना हो रहा है, जीरो, बिकॉज cos 90 इज जीरो, वर्क डन होता ही नहीं है। एंड वर्क थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई। अगर वर्क डन कोई हो ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। मेरी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है पार्टिकल की, काइनेटिक कोई वर्क डन भी नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती है हम पे, वो क्या करती है, सिर्फ हमें डायरेक्शन चेंज करती है, ना उसकी वेलोसिटी चेंज करती है, ना कोई वर्क प्रोवाइड करती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर सीबीएस, ठीक है। वो पूछते हैं कैलकुलेट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो यू मस्ट रिमेंबर वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स हैं और हमें डॉट प्रोडक्ट करके क्या मिल रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो एफ डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, फोर्स प्रोवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो कितना एंगल है इनके बीच में, वो है मेरा थीटा। पर मुझे पता है वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। कि दोनों कैसे हैं मेरे, पैरेलल वेक्टर्स हैं, v किसका पैरेलल हो जाएगा, s के पैरेलल हो जाएगा। तो जितना एंगल मेरा फोर्स v के साथ बनाता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट के साथ बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में हमें पता है कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो गया, 90 हो गया मेरा। और फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो सारे 11th के कंसेप्ट क्या होते हैं यहाँ पे, थोड़े थोड़े यूज होते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला, दिस वर्क एनर्जी थ्योरम हमने जो यहाँ पे अप्लाई करा, जिससे हमें क्या दिखाया, काइनेटिक एनर्जी नेवर चेंजेस। तो आप लोग ये लिखो, दिस इज एन इम्पोर्टेंट 1 or 2 mark क्वेश्चन।
किस डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन हमने देखी क्या कर देगा, अपवर्ड क्या कर रहा है, ये डेविएट कर रहा है, ठीक है, इस रीजन में समझना, ठीक है। ये रीजन में हमारी क्या है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है यहाँ पे, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ने क्या किया, एंटर किया विद अ वेलोसिटी v, अ चार्ज पार्टिकल q। इसने देखो यहाँ पे एंटर किया, अब तक तो ये सीधा मूव कर रहा था बिकॉज इस रीजन में कोई भी मेरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो नो डिफ्लेक्शन। जैसे ये यहाँ पे आया तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यू वी बी फोर्स लग जाएगा, और ये कितना है, थीटा 90 डिग्री है, क्यू वी बी साइन थीटा लगता, बट वी नो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये इनटू द प्लेन है, ये प्लेन में है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये, क्यू वी बी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अभी हमने देखी क्या लगने लग गई थी, अपवर्ड लगने लग गई थी इस पे, तो मेरा पार्टिकल जा ऐसे रहा था, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखो इस पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये इधर, तो मेरा फोर्स लगेगा, मेरा फोर्स थोड़ा इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, इस साइड ऐसे हो जाएगी, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, फिर ये क्या हो जाएगी टेंजेंशियली ऐसे, फिर फोर्स लगेगा ऐसे, ऐसे करके ये क्या आ रही है, बाहर आ रही है। ये एक सर्कल क्या करके, सर्कल की फॉर्म में, एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री लेके क्या आ रही है, ये इस रीजन से बाहर भी आ सकती है। नॉट ओनली कि बाहर आएगी, हम बहुत सारे रीजन देखेंगे कब बाहर आएगी, कितनी रेडियस से बाहर आएगी, पर यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री पे एंटर किया हमारा, ऐसे ऐसे एंटर किया, बट इस पे क्या लगा, एक एफएम लगा। थोड़ी देर बाद देखा डायरेक्शन चेंज हुई, तो एफएम की डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर एफएम की डायरेक्शन, इधर एफएम की डायरेक्शन, ये क्या लग रहे हैं, एक पॉइंट के टूवर्ड्स इसे क्या करा रहे हैं, सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। तो दिस फोर्स जो हमारा क्या है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज प्रोवाइडिंग मी द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज providing the charge part, the required centripetal force, required centripetal force to move in circular motion, to move in circular motion। ये क्या, अगर 90 डिग्री पे आता है तो ये कैसे प्रोजेक्शन अगर 90 डिग्री पे करी है, प्रोजेक्शन इज डन एट 90 डिग्रीज टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे क्या लगेगा, ये सर्कुलर मोशन करता है। देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उस पर एक रेडियली इनवर्ड फोर्स लगता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे हमारे अर्थ और मून में कौन प्रोवाइड करता है, हमारा ग्रेविटेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर मैंने एक स्टोन को घुमा दिया अपने हाथ से स्ट्रिंग टाई करके, टेंशन प्रोवाइड्स मी दैट फोर्स, तो यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे मेरा प्रोवाइड कर रहा है द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये किस रेडियस में, कितनी रेडियस में, कि अगर मैग्नीट्यूड देखो मैं क्या डिफरेंट डिफरेंट रेडियस क्या करके बाहर आ सकता है ये, तो ये किस रेडियस में ट्रैवल करके आएगा, दिस इज माय रेडियस एम बी ओवर क्यू बी, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v क्या है हमारी वेलोसिटी, q क्या है हमारा चार्ज है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एंड एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, प्रोजेक्शन इज डन, ये ठीक है, ये किया हमने। और ये है कौन सा केस, व्हेन प्रोजेक्टेड एट मींस पार्टिकल को हमने किस प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, अगर वो 90 डिग्री पे आती है, सर्कुलर मोशन क्या करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, तो रेडियस कितना होगा यहाँ से ये, ठीक है। देखो कोई भी यहाँ पे एक सेंटर होगा, उसके टूवर्ड्स हमारा क्या लग रहा है, रेडियल फोर्स, दैट इज माय सेंट्रीपिटल फोर्स।
Please note this down. ठीक है, आपसे क्या पूछेगा? रेडियस पूछेगा, और क्या पूछ सकता है? फ्रीक्वेंसी। ये किस में ऐसे, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वी नो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज v बाय आर। तो वेलोसिटी तो हमें पता है, ये क्या है हमारा, ये हमारा हमने निकाला था mv बाय क्यू बी, इट्स इक्वल्स टू क्यू बी बाय m। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी of the particle moving in the circular in the magnetic field। हमने देखा रेडियस कितनी ट्रेवर्स करेगा एंड हमारा ओमेगा कितना होगा। ठीक है, this is the radius of the charged particle travel in the magnetic field B, the angular frequency of particle in region B in रीजन बी। एंड हमारा क्या होगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड वी नो टी इज द टाइम पीरियड, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये कितना टाइम पीरियड स्पेंड करता है, ये हो जाएगा, इट वुड बी 2 पाई। ओमेगा क्या है हमारा? क्यू बी बाई क्यू बी एम। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटीज, ये हमारी क्या आएंगी? टाइम पीरियड हमारा सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? मास एंड मास एंड मैग्नेटिक ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर हम उसमें ये सारे क्या करेंगे, अगर चार्ज बाय मास रेशियो स्पेंड द सेम टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेट चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पार्टिकल आया था इस रीजन में, इस रीजन में इसको इतना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, ये डेविएट हुआ, फिर हर पॉइंट पे क्या हुआ? इसको डेविएशन मिली ड्यू बिकॉज इट इज एक्सपीरियंस इज अ फोर्स। उस फोर्स की वजह से क्या किया इसने? सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर लिया। सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा? आर, ये लिख दिया है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा, टाइम पीरियड स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, ये सब हमसे क्या पूछ सकता है? दे कैन, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। We'll see the illustrations in the next class when we'll complete the topic। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने फर्स्ट 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। अगर पैरेलली प्रोजेक्ट कर देती हूँ दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस यहाँ पे है हमारे पास, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। द फोर्स एक्सपीरियंस विल बी क्यू वी बी साइन थीटा एंड इट विल बी 0।
क्या हो जाएगा 0, द particle will move in same direction भी change in same direction with same velocity। ये क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा हमारे सेम वेलोसिटी के साथ। इसके बिकॉज फोर्स नहीं लग रहा है तो ना हमारा डायरेक्शन ऑफ पाथ चेंज होगा, ना हमारा क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। दोनों हमने क्या कर लिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स कर लिए हैं, अगर 0 डिग्री पे आता है और अगर 90 डिग्री पे आता है। अब हम देखेंगे अगर किसी एंगल पे आता है, किसी क्या आता है, किसी एंगल पे आता है तो हमारा कैसा क्या करेगा, ये मोशन करेगा। ठीक है, अगर जैसे हमने क्या किया, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल। अब जर्नल केस ले लेते हैं। अगर हमने क्या किया, इसे ऐसे प्रोजेक्ट कराया एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से, बी से क्या है, थीटा एंगल पे आ रहा है। कैन आई रिजॉल्व दिस, इसका एक कंपोनेंट होगा मेरा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये क्या कर दिए, सॉरी, वी कॉस थीटा एट एन एंगल थीटा हमने क्या किया है, इसे प्रोजेक्ट किया है। अब हमने क्या लिया है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी एंगल थीटा पे, तो आई कैन रिजॉल्व दिस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, इनटू वी कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। अब देखो, हमारा जो वी कॉस थीटा है, इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है हमारा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या करना चाहेगा, ये बॉडी को उसी डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा कि हम कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हम इस वेलोसिटी की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये पार्टिकल क्या करता रहेगा, हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन ही करता रहेगा। एफ साइन थीटा है, ये क्या, ये है हमारे परपेंडिकुलर टू बी। ये क्या करेगा, इसे सर्कुलर मोशन देने का ट्राई करेगा। ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन देने का ट्राई करेगा। अब इस पार्टिकल के पास दोनों वेलोसिटीज हैं, तो ये क्या करेगा, दोनों चीजें साथ साथ करेगा। ये क्या करेगा, ये हेलिक्स करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सर्कल में भी जा रहा है, रेडियस आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन कैलकुलेट करेंगे, और ये आगे भी मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है इसकी वजह से, और सर्कुलर मोशन कर रहा है इसकी वजह से। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एम वी डी डैश क्यू बी। यहाँ कौन सी वेलोसिटी होती है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, एम बी साइन थीटा ओवर क्यू बी। बिकॉज सिर्फ यही वाली वेलोसिटी क्या कर रही है, हमें रेडियस प्रोवाइड कर रही है। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स, ये क्या शेप है, रेडियस ऑफ हेलिक्स कैसी शेप है, हेलिक्स शेप है। ये थर्ड हमारा हो गया, प्रोजेक्टेड एट सम रैंडम एंगल थीटा, प्रोजेक्टेड एंगल थीटा। अगर मैं थीटा एंगल पे से क्या करती हूँ, प्रोजेक्ट करती हूँ, मींस ये क्या कर रहा है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, v cos थीटा एंड v sin थीटा। cos थीटा क्या करेगा, इसे पैरेलल है, पैरेलल पे तो कोई फोर्स लगता ही नहीं है, फोर्स जीरो, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन ही करते हैं। ये क्या करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या करेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसकी वजह से क्या आता है, हमारा एक सर्कुलर मोशन आता है। क्या आता है, एक सर्कुलर मोशन। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो हमें कैसा मिला, हमें कैस हेलिक्स मिला। क्या मिला हमें, हेलिक्स मिला। दैट मीन्स सर्कुलर भी कर रहा है और आगे भी मूव कर रहा है। इट इज ट्रेजेक्ट्री कैसी है, हेलिक्स ट्रेजेक्ट्री है। तो रेडियस ऑफ द हेलिक्स वुड बी एम वी डैश एंड क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, so this is all about the forces experienced by the charged particle in magnetic field। उसमें हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर करी और उसकी वजह से कितना फोर्स लगता है वो क्लियर किया। If any doubt you can note this down, and if any doubts you can ask in the chat box. No doubt.
And then next class we'll see the illustration. And हमने जो third fact किया, आपने दो फैक्ट तो कर लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक क्यूई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्यूवीबी करता है, अगर दोनों में रखा है तो लॉरेंज फोर्स हो जाता है। अगर करंट कैरिंग एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। कम बाय रिवाइजिंग दिस टॉपिक बिकॉज दैट विल बी एनालॉगस टू दिस। जो जैसे हमने आज किया है वो बिल्कुल एनालॉगस होगा हमारे करंट कैरिंग वायर के लिए। Okay, class 12th? No one has any doubt? If no doubts, then I'll be ending the class. Please note this down. And if you have noted this down, then you can leave the meet. Okay, bye everyone. Thank you. You can note this down. I'm here only. If you have any doubts, you can ask in the chat box. Okay, if no doubts, then I'm ending the class here.